अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ बुक लव स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान के थर्ड सेशन के साथ। लास्ट सेशन में हमने हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को कवर किया था और उनकी स्टोरी को एंगल ऑफ लव बिटवीन स्पाउसेस के थ्रू से देखा था। आज हम देखते हैं कि ऑथर ने दूसरी स्टोरी हमारे साथ कौन सी शेयर की है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेकंड स्टोरी जो ऑथर ने बयान की है वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम, लव एंड ब्यूटीफुल पेशेंस। ऑथर लिखते हैं, We have spoken now of a genuine true love, the love created by Allah between a husband and his wife, Adam and Hawa. यानी यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हमने लास्ट जो स्टोरी की थी उसमें हमने हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो एक स्पाउस होने की हैसियत से लव था उसको देखा था। Every surah in the Quran has an underlined theme. There is one theme that is the concrete message of the surah. The theme of Surah Yusuf is love. It is a love of a father for his son. It is a love of a son for his father. It is the false love, the infatuation, the sinful and impassioned love of a woman for a man. It is the love of the dunya, where people would kidnap a son or brothers would conspire against one of their own brother. It is the love of authority and kingdom. Love in all of its shades are discussed in Surah Yusuf. However, we are going to just focus on two aspects of it. Imam Ibn al-Qayyim says about love being of two types. सुबहानल्लाह, यहाँ पे ऑथर ने ये बताया है कि कुरान में जितनी भी सूराज हैं उन सब की कोई ना कोई एक थीम ज़रूर होती है। इसी तरह से सूरह यूसुफ की थीम जो है वो लव है और सिर्फ एक किस्म का लव नहीं बल्कि सूरह यूसुफ ने डिफरेंट शेड्स ऑफ लव को कवर किया है। और फिर ऑथर बताते हैं कि इमाम इब्न अल क़य्यम के मुताबिक लव दो किस्म का होता है। नंबर वन, लव दैट इज़ प्लीजिंग टू अल्लाह, द लव ऑफ अ हस्बैंड टू हिज वाइफ, द लव ऑफ अ फादर एंड मदर टू देयर चिल्ड्रन, द लव ऑफ चिल्ड्रन फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, the love we interchange with one another that does not have an act of sin. यानी वो लव, वो मोहब्बत जो अल्लाह जिससे खुश होते हैं वो एक शौहर और एक बीवी के दरमियान, वालदैन और बच्चों के दरमियान, वालदैन की बच्चों के साथ और उसके बाद बच्चों की अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और साथ साथ जो दोस्त आपस में मोहब्बत करते हैं जिसमें कोई गुनाह इन्वॉल्व नहीं होता। This kind of love is blessed and it is honored. It is something that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would say, do not separate between two people who love one another. Subhanallah. यानी इस किस्म की मोहब्बत का पाया जाना it is blessed. वालदैन बच्चों की, शौहर बीवी की, दोस्तों की आपस में मोहब्बत जो अल्लाह की खातिर है, तो इस किस्म की मोहब्बत में बल्कि अल्लाह की रज़ा भी शामिल होती है। In one hadith in Sahih Muslim, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sitting and a man walked by. The Prophet whispers to Sahaba, what do you think of this man who has just walked by? They say, O Messenger of Allah, he is the best of us. He is the best to his family. He is a wealthy man. If he gives me advice, I will listen. If he speaks on behalf of someone, I will listen to his speak. If he asks for someone in my family to wed them, I would be honored. The Prophet stayed quiet. Another man walked by later on, and the Prophet ﷺ asked again, what do you think of this man? They said, O Messenger of Allah, he is one of the best of us. He is not wealthy. If he gives us advice, we will go against him. If he speaks on behalf of someone, we will go against them as well.
And if he asks for someone from our family, we would be insulted. The Prophet ﷺ said, this one that you speak critically of, one of him with Allah is better than the whole earth populated by the first one you spoke highly of. Sometimes we have the wrong scales that we judge by. यानी यहाँ पे ऑथर ने एक हदीस की मिसाल दी है कि एक हदीस में बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे थे और एक शख्स गुजरा, तो आपने सहाबा से उस शख्स के बारे में पूछा। सहाबा ने बहुत तारीफ़ की कि ये शख्स तो हमारे दरमियान बहुत वेल्दी भी है, बहुत ऑनर्ड है, और अगर किसी के बारे में बात करेगा तो हम इसकी बात सुनेंगे, अगर किसी के लिए रिश्ता भेजेगा तो लोग अपने आप को ऑनर्ड समझेंगे। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, और उसके बाद एक दूसरा शख्स गुजरा और उससे भी उसके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल किया। तो उस शख्स के लिए सहाबा ने बिल्कुल अपोजिट बात की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वेल्दी भी नहीं है और ये हमारे दरमियान, ही इज़ नॉट बेस्ट ऑफ अस अमंग अस, बेस्ट ऑफ अस, और अगर ये किसी के बारे में बात करेगा तो हम इसके अगेंस्ट जाएंगे, और अगर ये किसी को शादी की ऑफ़र देगा तो वो शख्स अपने लिए इंसल्ट फील करेगा। यानी यहाँ पे बेसिकली ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हमारे जो मोहब्बत के मयार होते हैं वो गलत भी होते हैं। हम लोगों से ज़ाहरी चीज़ों की बिना पर मोहब्बत कर लेते हैं, जबकि अल्लाह ताला इंसान से उसकी नीयत, उसके अखलाक और उसके बातिन की वजह से मोहब्बत करता है। दूसरी किस्म का लव जिसके बारे में इमाम इब्न अल क़य्यम ने कहा था कि दो किस्म का है, एक हमने देख लिया, द लव विच इज़ प्लीजिंग टू अल्लाह। सेकेंड इज़ सिंफुल लव, infatuated love, an impassioned love that is built on the same emotions and the same feelings, but it causes you to sin to achieve it. Subhanallah. यानी ये दूसरी किस्म का लव वो होता है जिसमें शायद इमोशंस और फीलिंग्स तो पहले के जैसी ही होती हैं, लेकिन ये वो लव होता है जो कि हमें सिन, कोई गुनाह करने पर मजबूर करता है। Such is the example of the love that happened with Yusuf alayhi salam, the woman who attempted to seduce him in a conventional way. But he refused, and he said, I seek refuge in Allah, because his heart would lean towards it. It is not something that a man does not want. She sought him, and he would have sought her. He would have wanted to be with her had his Lord not saved him with clear evidence of its sinfulness. Allah made his heart firm. He was a sincere person to Allah. When you are truthful and sincere, Allah helps you when you cannot help yourself. Subhanallah. यहाँ पे ऑथर ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया है कि जब वो उस औरत के घर में थे और उस औरत ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुलाना चाहा, लेकिन ये अल्लाह का ही एहसान था, अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी कि अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस गुनाह से दूर रखा। और ऑथर आखिर में ये बताते हैं कि व्हेन यू आर ट्रुथफुल एंड सिंसियर, अगर इंसान की नीयत अच्छी है और वो खालिस नीयत के साथ उस गुनाह से बचना चाहता है, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे इंसान की मदद ज़रूर करते हैं। आगे ऑथर इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम शी लॉक्स द विंडोज, ही रन्स आउट द डोर, शी बैरिकेड्स द डोर, ही जंप्स आउट द विंडो, शी लॉक्स एवरीथिंग अप, शी किक्स ऑल द सर्वेंट्स आउट, शी लॉक्स एवरीवन आउट, एंड शी सेज, I have made everything ready. There is no escape today. But he still runs. And the scholars say, why does Yusuf run towards the door which he knew that it was locked? Because he needed to get away. Sometimes she grabbed him, sometimes she scratched him. Finally, she pulled him by the back of his shirt and it ripped apart. The husband arrives and he sees what is going on. He knows the truth. What we forget in the story of Yusuf is who began with dishonesty first, the wife or the husband. When Yusuf was rescued from the well, the husband says to his wife, maybe we can claim him as our son. So, who is the person who has set up the pattern of dishonesty? यहाँ पे ऑथर जो है एक तरह से इसकी डेप्थ में जाके बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, वाइफ की तरफ से डिसऑनेस्टी थी, बट
हमें गहराई में जाकर देखना चाहिए कि डिसऑनेस्टी की इब्तदा पहले किसने की। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस कुएं से निकाला गया और इस शख्स ने अपनी बीवी के हवाले किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो उसने अपनी बीवी से कहा था कि हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। सो जस्ट पॉन्डर दैट हु हैज सेट अप द पैटर्न ऑफ डिसऑनेस्टी। Then she says, "Hey, what are you going to do to a man who assaults your wife?" But Yusuf alayhi salam said, "Look, it is her that chases me, and the people are witnesses. All the evidences are there." And then he says, "You have wronged yourself. Your evil has shown itself." The people in the city begin to mock her. Look at how Allah discusses and describes her false love. Allah says that the woman in the village said she became so insane and impassioned with love that love penetrated all aspects of decency. She did not care about her self respect, that he did not want to be with her. She did not care about his age. She did not care about what her husband would think, what his family would think, what society would say. She lost everything for this false love. The promise of the Prophet ﷺ is true. He said, "Let a person who commits sexual misconduct and immorality know with certainty that their deed would be exposed in the midst of their home." Allah makes it known in a home with those who you hate to know that about you. It is the one deed that its punishment that begins in this life this way. Its punishment is exposure. Subhanallah. यानी यहाँ पे ऑथर ने पूरी स्टोरी बयान की है जो कि सूरह यूसुफ में हम पढ़ते हैं कि किस तरह उस औरत ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए प्लानिंग की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बंद दरवाज़ों की तरफ दौड़े और आगे फिर उस औरत के शौहर को पाया। उस औरत ने इल्ज़ाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया, लेकिन तमाम एविडेंसेस यूसुफ अलैहिस्सलाम की फ़ेवर में थे। और फिर यहाँ पर ऑथर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान किया है कि अगर कोई शख्स इस तरह की बुराई करता है जिसका ताल्लुक़ शहवानी फ़ेल से होता है, तो फिर उसकी एक सज़ा ये होती है कि उसके इस बुरे काम को उन लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया जाता है जिनके सामने एक्सपोज करने से वो शख्स बचना चाहता है। Yusuf alayhi salam is abused further. He is imprisoned. We learned about true love and redemption. Because of his true love to Allah and his patience with Allah subhanahu wa ta'ala, everything that was taken away from him by others is returned to him by Allah. His brothers who threw him in the well, Allah sent them to him in the time of need, drought. He knows them and they do not remember him. They become at his mercy. Foods are in his hand and he saves his brothers. He brings his father and mother to a new land and teaches them about love and compassion and redemption. Subhanallah. यहाँ पे ऑथर अल्लाह ताला की इस सुन्नत को बता रहे हैं कि जो भी अल्लाह से खालिस मोहब्बत करता है और अगर इस मोहब्बत में वो कोई चीज़ खोता है तो अल्लाह ताला उससे कहीं बेहतर उसे नवाजते हैं। किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ क्या किया, उन्हें कुएं में फेंक दिया, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला उनके भाइयों को उन्हीं के पास लेकर आए और इस हाल में कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मोहताज थे। The woman who accused him, after 10 years, people still knock on her door and they are asking for what actually happened between her and Yusuf and to those women who cut their hands. They want to know the truth. The women say, "We know nothing wrong about Yusuf." And the wife to the master of the house says, "I declare that it was me. I was at fault. I did not free myself from sin. That sin was a calling of my inner being at that time and I repent to Allah subhanahu wa ta'ala." और फिर वो औरत जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर कैद में डाल दिया गया, इतने सालों बाद उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी कि मैंने तो यूसुफ में कोई बुराई देखी ही नहीं, हाँ मैंने उसे इस बुराई की तरफ बुलाना चाहा था। सुभान अल्लाह।
और अब देखिए कि इस स्टोरी से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। यहाँ पे ऑथर ने ख़ास 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स बताए हैं। ऑथर लिखते हैं, वी टेक 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स। नंबर 1, harm will be done to you in life. It is inescapable. There will be people who you would assume should care for you, sometimes will not. There will be brothers who will steal from you. There may be sisters who have jealousy of you, including your own blood. There is example in the Quran. पहला लेसन तो ये है कि इंसान ये याद रखे कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें और आजमाइशें आएंगी, इनके बग़ैर गुजारा नहीं है। और इसकी मिसाल हमें कुरान में मिलती है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अपने करीबी रिश्तेदार, हमारा अपना खून हमें तकलीफ़ पहुंचाए। लेकिन ऐसे मौके पर हमें रिएक्ट कैसे करना है, तो वो हमें कुरान से सीखना होगा। Number 2, never to act towards others as they have done to you in a sinful way. What saves Yusuf? What elevates Yusuf? What gives Yusuf the kingdom of Egypt in his hand? Subhanallah. यानी यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपके साथ बुराई की है तो आपने उसके साथ वैसी ही बुराई नहीं करनी। ज़रा सोचिए कि वो क्या चीज़ थी जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस गुनाह से बचाया। वो क्या चीज़ थी जिसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट की बादशाहत दी? पेशेंस। Yusuf's greatest beauty, as Allah says in the Quran twice, I will show beauty in my patience. Do not respond to others in like indeed as they have done to you in error and sin. If you do so, you are equal to them and will be punished similar to them. The punishment will be that Allah does not leave anything from you, and you are left to your own devices. You have no assistant from the divine. But if you endure, and if you show compassion, and if you have true love for the Maker, the Almighty, that reflects in your treatment of others, you will find Allah as your Savior, your salvation, and your guardian in this life and the next. Subhanallah. अगर इंसान ऐसे मौक़ों पर सब्र के दामन को थामे रखेगा, अल्लाह के वादों पर यकीन के साथ कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, तो फिर यकीनन ऐसा शख्स अल्लाह ताला को अपना सेवियर, अपना वकील, अपना कारसाज पाएगा, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। And the third lesson which we learn from this is that Allah seeks for us to come back together and re-establish the ties of kinship. It is very difficult. Sometimes our anger, our arrogance, and our pride overcomes us to cause greater corruption than what we might have even experienced. Allah warns us of this in the story of Yusuf, to take that counsel from him and to observe his behavior in that regard. सुबहान अल्लाह। यानी थर्ड लेसन जो हमें मिलता है वो क्या, कि सिला रहमी करनी है, रहम के रिश्तों को कायम रखना है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारा गुस्सा, हमारी अना हमें ये उकसाती है कि जिन लोगों ने हमें तकलीफ़ दी है, अगर हम उन पर कादिर आ गए हैं तो हम उन्हें उस तकलीफ़ से भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा दें। लेकिन ऐसे में इंसान ये याद रखे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कितनी तकलीफ़ पहुंचाई थी, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या मामला किया, और फिर उस मामले के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी इज़्ज़त और कितना इकराम बख्शा, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। तो ये जो स्टोरीज़ हैं, इनको डिफरेंट एंगल से पढ़ना और उनमें से अपने लिए लेसन्स लेना ज़रूरी है। चूँकि ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं इसका टाइटल है लव स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान, इसीलिए हम यहाँ पर जो भी स्टोरीज़ पढ़ेंगे उनमें हम इस लव के एंगल के थ्रू उन स्टोरीज़ में से अपने लिए लेसन निकालेंगे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी से जो हमें लेसन इस लव के एंगल से मिलता है वो क्या, कि अपने लव को, अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए ख़ालिस रखना है। अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत ख़ालिस है तो अल्लाह ताला हमें ऐसे मौक़ों पर भी गुनाहों से बचा लेगा जब हम खुद अपने आप को बचाने पर कादिर नहीं होंगे। और साथ साथ अपने रहम के रिश्तों में भी इस मोहब्बत के पहलू को नुमाया करना है।
इंशाल्लाह ताला अगली स्टोरी को हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।